آج 24 مئی ہے اور جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ 27 سال پرانی ہے، لیکن تاریخ آج ہی کی تھی جب پاکستان ایئر لائن کا ایک طیارہ گوادر سے پرواز کرتے ہی ہائی جیک کر لیا گیا اور ہائی جیکرز اسے انڈین گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر لے گئے۔ وہ اسے دہلی لے جانا چاہتے تھے اور بھوج ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے اترے تھے۔ مسلح ہائی جیکر جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس بم بھی ہیں، انہوں نے طیارے کے 33 مسافروں سمیت عملے کے 5 ارکان کو یرغمال بنا لیا تھا۔ 24 مئی ایک ایسا دن جب رام چندر اور منوج کمار پاکستان کے ہیرو بن گئے، جب اسلام آباد کا کوڈ نئی دہلی اور آرمی کے کمانڈوز کا زی ٹی وی تھا۔ ایک ایسا دن جب پاکستان کے حیدرآباد میں عشاء کی اذان لاؤڈ اسپیکرز پر نہیں دی گئی، کیونکہ طیارہ بھوج ایئرپورٹ پر نہیں حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب مئی 1998 میں 11 سے 13 مئی تک انڈیا 5 ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور پاکستان پر جواب میں ایٹمی دھماکے نہ کرنے کا سخت ترین عالمی دباؤ تھا۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے انڈیا پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سامنے سے حملہ تو نہ کیا، لیکن بنیے کی پرانی خصلت دکھاتے ہوئے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش ضرور کی، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی منہ کی کھائی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بلوچستان کے تربت ایئرپورٹ سے، جہاں سے پی آئی اے کی پرواز PK-554 نے شام 4:40 پر گوادر کے راستے کراچی کے لیے اڑان بھری۔ اس فلائٹ میں سے 3 مسافروں نے چونکہ گوادر اترنا تھا، اس لیے 5:35 پر یہ فوکر طیارہ گوادر ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ 20 منٹ کے اس قیام کے دوران 3 مسافر اترے اور 2 نئے مسافر گوادر سے کراچی جانے کے لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔ 5:55 پر طیارے نے کراچی کے لیے ٹیک آف کیا اور اسے 6:55 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، لیکن گوادر سے اڑتے ہی اسے ہائی جیک کر لیا گیا۔ ابھی جہاز گوادر کی فضاؤں میں ہی تھا کہ ایک نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور تیزی سے کاکپٹ کی طرف بڑھا۔ ایئر ہوسٹس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اسے ایک طرف دھکا دے دیا۔ یہ نوجوان کاکپٹ میں داخل ہوا اور وہ اس وقت تک اپنے بیگ میں چھپا ہوا پستول بھی نکال چکا تھا۔ اس نے طیارے کے پائلٹ کے سر پر پستول رکھتے ہوئے اسے طیارے کا رخ انڈیا کے جودھ پور کی طرف موڑنے کے لیے کہا۔ اسی دوران اس کے 2 اور ساتھی بھی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو چکے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھی پستول تھے۔ انہوں نے جہاز کے مسافروں اور عملے کو چیخ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور دھمکی دی کہ اگر کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو وہ اسے گولی مار دیں گے۔ اس موقع پر ہائی جیکرز نے اپنا بیگ دکھاتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس بم بھی ہیں اور وہ جہاز کو بم سے اڑا دیں گے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو جہاز کے عملے خاص طور پر کپتان سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا تقاضا کرتی تھی، اور جہاز کے کپتان عزیر خان نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جہاز کے پبلک ایڈریس سسٹم پر اناؤنسمنٹ کی کہ جہاز ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور اسے انڈیا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن اصل کام انہوں نے یہ کیا کہ جہاز کی ٹرانسپونڈر کو ہائی جیکنگ کا کوڈ 7500 ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھیجنے پر سیٹ کر دیا۔ یہ انٹرنیشنل ایوییشن کا ہائی جیکنگ الرٹ کوڈ ہے، اور پائلٹ جیسے ہی جہاز کی ٹرانسپونڈر کو 7500 پر سیٹ کرتا ہے، زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس جہاز سے یہ سگنل آیا ہے اسے ہائی جیک کر لیا گیا ہے، اور پائلٹ کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک خاموش الارم ہوتا ہے، اور جیسے ہی پاکستان کے سول ایوییشن حکام کو PK-554 سے یہ ایمرجنسی کوڈ موصول ہوا تو انہیں پتہ چل گیا کہ گوادر سے کراچی آنے والی پرواز کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ جہاز کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ بھارتی فضائی حدود کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان دنوں بھی کشیدگی عروج پر تھی، اور جس وقت پی آئی اے کا یہ جہاز کراچی کی طرف آتے ہوئے ہائی جیک کیا گیا، پاکستان ایئر فورس کے 2 لڑاکا F-7 طیارے علاقے میں معمول کی کامبیٹ ایئر پرواز پر تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اس مسافر طیارے کو انٹرسپٹ کر لیا، اور اب طیارے کے کیپٹن نے نیا داؤ کھیلا۔ عزیر خان نے ہائی جیکر سے کہا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ وہ دہلی تک پرواز کر سکے، اس لیے وہ جہاز کو انڈین گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں۔
लेकिन असल में ये हैदराबाद एयरपोर्ट था। हाईजैकर्स के लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि वो जहाज़ को इंडिया लेकर आ गए हैं। उन्होंने पायलट को भोज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी और पायलट ने हैदराबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भोज एयरपोर्ट कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया और रीफ्यूलिंग के लिए उतरने की इजाज़त चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें किसी भी जानिब से ज़रा सी गलती कई जानों के ज़िया का सबब बन सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के एयरपोर्ट मैनेजर की जानिब से सूरत-ए-हाल को भांप लिया गया था और उन्होंने कॉकपिट को जवाबी मैसेज दिया कि हाँ, ये भोज एयरपोर्ट है और आप रिफ्यूलिंग के लिए उतर सकते हैं। जहाज़ की लैंडिंग से पहले पहले हैदराबाद एयरपोर्ट की इमारत की लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि हाईजैकर्स इमारत पर लिखा हुआ हैदराबाद एयरपोर्ट ना पढ़ सकें और जहाज़ के लैंड करते ही उसे एयरपोर्ट के एक ऐसे हिस्से की तरफ ले जाकर खड़ा कराया गया जो एयरपोर्ट की इमारत से खासा दूर था। और फिर कहानी में एंट्री हुई रामचंद्र, मनोज कुमार और गोपी चंद्र की। रामचंद्र उन दिनों एसएसपी हैदराबाद थे और मनोज कुमार एएसपी फुलेली। पाकिस्तान में उस वक्त तक न्यूज़ चैनल नहीं आए थे कि ये खबर न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए सब तक पहुंच जाए और ना ही उस वक्त तक मोबाइल फ़ोन आया था कि दुनिया सिमट कर एक कूजे में बंद हो जाए। इन दोनों अफसरान को वायरलेस के ज़रिए ये संदेश मिला कि तमाम पुलिस अफसरान फौरी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँचे और जब ये एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एक तैयारा हाईजैक करके हैदराबाद ले आया गया है और साथ ही ये भी कि हाईजैकर्स को ये नहीं मालूम है कि वो पाकिस्तान में ही हैं, वो इसे भोज एयरपोर्ट समझ रहे हैं। एयरपोर्ट को पुलिस और रेंजर्स घेरे में ले चुकी थी, लेकिन इस बात के बाद कि हाईजैकर्स खुद को इंडिया में समझ रहे हैं, हाईजैकर्स की ये गलतफहमी बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया कि पुलिस और रेंजर्स को एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया जाए और आला हुकाम से राब्ते शुरू कर दिए गए। उस वक्त मुल्क के वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे और लियाकत जतोई वजीर आला सिंध। एसएसपी हैदराबाद रामचंद्र को इत्तला मिली कि इस ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक ब्रिगेडियर मौके पर पहुंचने वाले हैं, जो कि कुछ देर में पहुंच भी गए, लेकिन उन्हें उस वक्त तक कोर कमांडर ऑफिस से हिदायत नहीं मिली थी, इसलिए ऑपरेशन की निगरानी या सरबराही एसएसपी हैदराबाद के ही हिस्से में आई। इसी दौरान हाईजैकर्स ने अपने मुतालबात पेश कर दिए और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हाईजैकर्स फौरी तौर पर इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो तो खुद को इंडिया में समझ रहे थे और उनका मुतालबा था कि इंडियन न्यूज़ चैनल जी टीवी की टीम को भी बुलाया जाए, वो उसे इस हाईजैकिंग से मुताल्लिक इंटरव्यू देंगे। जी टीवी उस वक्त इंडिया का बड़ा मशहूर न्यूज़ चैनल था और डिश के ज़रिए पाकिस्तान में भी देखा जाता था। हाईजैकर्स का ये पैगाम जहाज़ के इंजीनियर सज्जाद चौधरी बाहर लेकर आए थे। उन्हें भी उस वक्त तक ये बात नहीं मालूम थी कि जहाज़ इंडिया के भोज एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही हैदराबाद एयरपोर्ट पर है। इंजीनियर सज्जाद चौधरी ने बताया कि जहाज़ में हाईजैकर्स की तादाद 5 है, जिनके पास छोटे हथियार भी हैं और बम भी, और बम उन्होंने जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब कर दिए हैं। जहाज़ के पायलट उज़ैर खान की जानिब से जहाज़ के इंजन फ्यूल की कमी का बहाना करके बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जहाज़ का एयर कंडीशन भी बंद हो गया था। जहाज़ में शदीद गर्मी थी, जिससे मुसाफिरों का हाल बुरा हो गया था और कुछ ऐसा ही हाल हाईजैकर्स का भी था और जहाज़ में पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था और हाईजैकर्स की जानिब से जहाज़ में फौरी तौर पर पीने का पानी पहुंचाने का भी मुतालबा किया गया था और यहीं से एसएसपी रामचंद्र और एएसपी मनोज कुमार ने एक्शन में आने का फैसला किया। ये दोनों अफराद उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थे बल्कि सादा लिबास थे। एसएसपी हैदराबाद तो हैदराबाद प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में शरीक थे और इत्तला मिलने पर वहीं से एयरपोर्ट पहुंचे थे। रामचंद्र ने जब ये सुना कि तैयारे में पीने के पानी की ज़रूरत है तो उन्होंने फैसला किया कि वो पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज़ के अंदर जाएंगे। उन्होंने अपने मातहत एएसपी मनोज कुमार से पूछा कि क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो, और मनोज कुमार भी उनकी आशा के मुताबिक उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिन्हें मैं रामचंद्र और मनोज कुमार कह रहा हूं, ये कोई हिंदू पुलिस ऑफिसर नहीं थे। एसएसपी हैदराबाद थे अख्तर गोरचानी और एएसपी फुलेली थे डॉक्टर उस्मान अनवर। और अख्तर गोरचानी ने जब खुद पानी लेकर तैयारे के अंदर जाने का फैसला किया तो उस वक्त उन्होंने खुद को रामचंद्र और उस्मान अनवर को
मनोज कुमार का नाम दिया ताकि अंदर मौजूद हाईजैकर्स को कोई शक ना हो, और जाने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी बता दिया कि जब जहाज के अंदर उनसे राब्ता किया जाए तो उन्हें इन्हीं नामों से पुकारा जाए। अख्तर गोरचानी ने अपनी घड़ी इंडिया के वक्त के मुताबिक आधे घंटे आगे कर ली और उस्मान अनवर ने अपनी जेबें टटोली। वो देखना चाहते थे कि उनकी जेबों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हाईजैकर्स को ये पता चल जाए कि वो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में है। डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक उनकी जेब में 500 रुपये थे जो उन्होंने निकाल कर बाहर रख दिए, और फिर रामचंद्र और मनोज कुमार जितनी पानी की बोतलें उठा सकते थे उठाकर जहाज की तरफ चल पड़े। और हाँ, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि उन्होंने अपने लिए ओहदे क्या तख्लीक किए थे। रामचंद्र थे मैनेजर भोज एयरपोर्ट और मनोज कुमार थे उनके असिस्टेंट मैनेजर भोज एयरपोर्ट। ये दोनों जैसे ही जहाज के करीब पहुंचे तो हाईजैकर्स ने असलहे के साथ उनका स्वागत किया। हाईजैकर्स असलहा लेकर जहाज में कैसे पहुंचे ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। खैर, रामचंद्र और मनोज कुमार के जहाज के पास पहुंचने पर हाईजैकर्स ने उन्हें पानी की बोतलें जमीन पर रख देने के लिए कहा। एक हाईजैकर ने आगे बढ़कर दोनों की जामा तलाशी ली और फिर ये देखकर मुतमईन हो गए कि उनके पास वॉकी टॉकी के सिवा कुछ नहीं है। इन दोनों ने अपने नाम और जो ओहदे बताए उनसे हाईजैकर्स का ये यकीन और पक्का हो गया कि वो इंडिया पहुंच चुके हैं, और उन्होंने उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू भी शुरू कर दी। जबकि इस दौरान अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर हाईजैकर्स की पोजीशन भी चेक कर रहे थे कि कौन कहां खड़ा है और किसके पास क्या हथियार है। हाईजैकर्स उनके दरमियान बेतकल्लुफी इसलिए भी तेजी से बढ़ती चली गई कि उस्मान अनवर ने उन्हें पाकिस्तान पर लतीफ़े बना बनाकर सुनाना शुरू कर दिया, और इस दौरान वो जी टीवी देखकर जितने हिंदी के अल्फाज सीख चुके थे वो उन्होंने अपनी भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाईजैकर्स उनसे बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे, लेकिन बीच बीच में वो ये सवाल ज़रूर करते थे कि जी टीवी की टीम कहाँ रह गई है। अख्तर गोरचानी के मुताबिक जहाज तक जाने से पहले उन्हें ये इत्तला मिली थी कि हाईजैकर्स को काबू करने के लिए आर्मी के कमांडोज की टीम इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो गई है, और वो कराची से हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद पहुंचेगी, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स की मौजूदगी में किसी पाकिस्तानी जहाज की लैंडिंग मुमकिन नहीं थी। हाईजैकर्स की जानिब से जी टीवी की टीम से मुतालिक सवाल करने पर अख्तर गोरचानी वायरलेस पर हाईजैकर्स का मुतालबा दोहराते। वो पूछते जी टीवी की टीम का था, लेकिन असल में वो इस्लामाबाद से आने वाले आर्मी कमांडोज के बारे में पूछा करते थे। यानी उस रोज़ कमांडोज का कोड नेम था जी टीवी और इस्लामाबाद का नई दिल्ली। कुछ वक्त गुजरने के बाद हाईजैकर्स की जानिब से ये मुतालबा सामने आया कि चूंकि जहाज का इंजन बंद होने की वजह से एयर कंडीशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए जहाज में पंखे लगाए जाए। रामचंद्र ने इस मौके पर हाईजैकर्स से कहा कि जहाज में जाकर ये देखना पड़ेगा कि पंखे लगाने के लिए सॉकेट कहाँ है, जिस पर हाईजैकर्स ने मनोज कुमार यानी डॉक्टर उस्मान अनवर को जहाज के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर उस्मान ने जहाज के अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लिया और बाहर आकर हाईजैकर्स से कहा कि जहाज में पंखे लगाने के लिए सॉकेट नहीं है, पंखे लगाने के लिए साथ में जनरेटर भी चाहिए होगा। हाईजैकर्स की आज्ञा मिलने पर जनरेटर और पंखे मंगवाए गए और जनरेटर के साथ पहुंचे आईएसआई के मेजर आमिर, जो उस वक्त एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में थे। उस्मान अनवर और मेजर आमिर ने जहाज के अंदर जाकर 2 पंखे लगाए, जिससे मुसाफिरों जिनमें बच्चे भी शामिल थे और हाईजैकर्स को कुछ सुकून मिला। इस दौरान कई घंटे गुजर चुके थे और अब हाईजैकर्स की जानिब से खाने का मुतालबा सामने आया, और यहाँ से एंट्री हुई गोपी चंद की, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल अकबर शाह, जो डीसी भोज बनकर खाना लेकर पहुंचे। गोपी चंद ने इस बात को यकीनी बनाया कि खाना ऐसे कागजों में लिपटा हो जिन पर उर्दू ना लिखी हो बल्कि हिंदी लिखी हो। उन्हें ऐसे कागज तो नहीं मिले जिन पर हिंदी लिखी हो, लेकिन ऐसे कागज जरूर मिल गए जिन पर थाई जुबान तहरीर थी, और उन्हीं में लपेट कर खाना अंदर पहुंचाया गया। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान अनवर, जो अपने ऑफिस से उठकर बराह रास्त एयरपोर्ट पहुंचे थे और भूख से उनका बुरा हाल था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था और सामने मज़ेदार चिकन भी था, लेकिन मनोज कुमार ने यह कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया कि वो शाकाहारी हैं, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, गोश्त नहीं खाते।
डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि उन्होंने बन रोटी पर ही गुजारा किया, लेकिन मेजर आमिर ने यह कहकर चिकन खा लिया कि वो कभी कभार छुप छुपा कर गोश्त खा लेते हैं। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और उस वक्त तक हाईजैकर्स और रामचंद्र और मनोज कुमार में काफ़ी बेतकल्लुफी हो चुकी थी। यहाँ तक कि मनोज कुमार और हाईजैकर्स का सरगना जहाज़ के करीब ही ज़मीन पर बराबर बराबर लेट गए और इस मौके पर वो पता चला जिसने ऑपरेशन को काफ़ी आसान बना दिया। मनोज कुमार और हाईजैकर्स के सरगना ज़मीन पर लेटे हुए थे कि सरगना ने मनोज कुमार से पूछा कि जहाज़ का फ्यूल टैंक कहाँ है। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अंदाजे से जहाज़ की पिछली तरफ इशारा कर दिया और फिर पूछा कि फ्यूल टैंक से क्या करना है। तो सरगना ने जवाब दिया कि जी टीवी को इंटरव्यू में अपने मुतालबात पेश करने के बाद वो जहाज़ के फ्यूल टैंक पर फायर करके जहाज़ को उड़ा देगा। उस्मान अनवर ने जब जहाज़ को फ्यूल टैंक पर गोली मारकर उड़ाने की बात सुनी तो उससे पूछा, आपके पास तो बॉम्ब है, आप बॉम्ब से जहाज़ को क्यों नहीं उड़ा देते। तो हाईजैकर्स के सरगना ने इंकिशाफ किया कि उनके पास बॉम्ब नहीं है, वो उन्होंने झूठ बोल रखा था, उनके पास सिर्फ 3 पिस्तौल ही हैं। हाईजैकर्स के सरगना के आगे पीछे होते ही डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह बात फौरी तौर पर रामचंद्र यानी अख्तर गोरचानी को बता दी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और सुबह होने वाली थी, और अगर सुबह हो जाती तो हाईजैकर्स को ये पता चल जाता कि वो भोज एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर हैं, और रामचंद्र और मनोज कुमार की एक तरफ सारी मेहनत ज़ाया हो जाती और दूसरी तरफ हाईजैकर्स उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए कुछ करना ज़रूरी हो गया था। जहाज़ के पास मौजूद चारों अफराद यानी सुहेल अकबर शाह, अख्तर गोरचानी, डॉक्टर उस्मान अनवर और मेजर आमिर ने इशारों ही इशारों में एक दूसरे को तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले यह ज़रूरी था कि जहाज़ के मुसाफिरों को महफूज बनाया जाए। उन्होंने एक एक करके हाईजैकर्स के सरगना से कहा कि उनके मुतालबात तो तस्लीम किए जा रहे हैं, इसलिए वो औरतों और बच्चों को जहाज़ से बाहर आने दें, बेशक उन्हें जहाज़ के सामने ही ज़मीन पर बिठा दिया जाए। और इस मौके पर एक और अहम तरीन बात उनके इल्म में आ गई। हाईजैकर्स के सरगना का कहना था कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 3 हैं, बाकी 2 तो बलोच नौजवान हैं जिन्हें उन्होंने डरा धमकाकर अपने साथ खड़ा किया हुआ है। ये संगीन सूरत हाल में निहायत कारामद बात पता चली थी कि उन 4 अफराद को 5 नहीं बल्कि सिर्फ 3 अफराद को काबू करना है। और जब हाईजैकर्स के सरगना ने एक मौके पर उनकी बात मान ली और जहाज से मुसाफिरों को उतार कर जहाज के दरवाजे के सामने ही बिठाया जाने लगा तो अचानक एक नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई और जहाज के दरवाजे पर खड़े हुए 2 हाईजैकर्स को डॉक्टर उस्मान अनवर और आईएसआई के मेजर आमिर ने छाप लिया, जबकि तीसरा हाईजैकर रामचंद्र यानी अख्तर गोरचानी के हाथ लगा, जिन्होंने नारे तकबीर बुलंद करके ऑपरेशन का क्यू दिया था। डॉक्टर उस्मान अनवर बताते हैं कि उन्होंने हाईजैकर्स के सरगना को दबोचा था। उसने उस मौके पर उन पर फायर भी किया, लेकिन गोली खुशकिस्मती से डॉक्टर उस्मान अनवर को लगने की बजाय हाईजैकर्स के एक साथी को ही लगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने उसे गिराकर उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दिया और इसी दौरान जहाज के पायलट ने जहाज में लगी एक कुल्हाड़ी उस्मान अनवर की तरफ फेंकी। उस्मान अनवर के मुताबिक वो सीधे हाथ से हाईजैकर को काबू किए हुए थे और दूसरे हाथ से उन्होंने कुल्हाड़ी पकड़कर हाईजैकर के सरगना के सर पर मारी, तो उल्टे हाथ से किया गया ये वार उनका अपना हाथ भी जख्मी कर गया, लेकिन उन्होंने हाईजैकर को छोड़ा नहीं। तीनों हाईजैकर जरा सी देर में काबू आ चुके थे और इस मौके पर एक एयर होस्टेस चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी उसे फौरी तौर पर पाकिस्तान जाना है, वो इंडिया में नहीं रुकना चाहती, जिस पर उसे तसल्ली दी गई कि वो परेशान ना हो, वो पाकिस्तान में ही है। हाईजैकर्स को काबू करने के बाद वायरलेस पर एयरपोर्ट की इमारत में मौजूद आला हुक्काम को इसकी इत्तला दी गई और फिर वहाँ से भी मजीद अहलकार जहाज़ तक पहुँच गए और हाईजैकर्स को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र यानी अख्तर गोरचानी बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि मनोज कुमार यानी डॉक्टर उस्मान अनवर इन दिनों आईजी पंजाब हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हाईजैकर्स के मुतालबात क्या थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 11 से 13 मई तक इंडिया ने एटमी धमाके किए थे और वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से रोकना चाहता था। इस हाईजैकिंग का मकसद भी यही था। हाईजैकर्स का मुतालबा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में एटमी धमाके ना करे,
लेकिन इंडिया की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी धमाके करके इंडिया को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि एक एटमी ताकत भी बन गया। तीनों हाईजैकर्स शहसवार, साबिर और शब्बीर और उनके साथी एएसएफ के एहलकार को हैदराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सजाए मौत सुना दी थी। ताहम एएसएफ के मुलाजिम की सजाए मौत को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। सजाए मौत पाने वाले तीनों हाईजैकर्स की सजाए मौत पर अमल दरामद भी हो चुका है 2015 में, और ठीक उसी रोज़ जिस रोज़ पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, यानी 28 मई को ये तीनों तख्तेदार पर लटका दिए गए। खस कम जहां पाकिस्तान में 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है और इंडिया में भी 11 मई को यही अहमियत हासिल थी, लेकिन इस साल इंडिया में 11 मई एक खामोश दिन के तौर पर गुजरा, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 मई को इंडिया पर जवाबी हमला करके उसकी सारी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया था। इंडिया अब 11 मई नहीं बल्कि 10 मई याद रखेगा और हम इंशाअल्लाह इस साल भी और हमेशा 28 मई को यौम तकबीर मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।